फ्लिपकार्ट। हम लोगों ने स्टोरी किया था फ्लिपकार्ट का सक्सेस स्टोरी, हाउ भावेश अग्रवाल स्टार्टेड, बिन्नी बंसल एंड Sachin Bansal started the Flipkart, and we discussed about what are the various, I guess we discussed about the various factors we discussed or not? Factors discuss कर लिया ना हम लोगों ने? Factors discuss हो गया है? अच्छा, we discussed nature of entrepreneurship only, right? So let's start with the factors influencing the entrepreneurship, and मैंने points आप लोगों को लिखवा दिया था last class में, ठीक है? So let's move toward this topic. Okay, so the first topic, first point under the factor influence entrepreneurship is educational. So before I am going to elaborate this point, but before that I just want to ask a very basic question, that what is the difference between literacy and education? What is the difference between literate or educated? कोई बताएगा मुझे, what is the difference between literate and educated? एजुकेशन में और लिटरेसी में क्या डिफरेंस है? किसी को कोई आइडिया है? ओके, लिटरेसी जो है इट इज बेसिकली बोल सकते हैं कि वेयर यू आर एबल टू राइट एंड रीड द बुक्स, वेयर यू कैन राइट योर नेम, दैट इज लिटरेसी. बट एजुकेशन इज द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन, skill and the creativity you have, right? And it is not necessary that these things are only for your personal use, but you are contributing toward the society by your education, right? You will improve, you will basically contribute to national development through education. Okay? So being educated, it means that it is also going to affect your behavior, that what kind of behavior basically you have toward the society. आपका behavior क्या है, आपकी mentality को भी describe करता है education, right? चलिए, so factors influencing entrepreneurship में जो first point है education. So no doubt the educational pattern nowadays are totally changed. Entrepreneurship is basically introduced in so many colleges and schools. Entrepreneurship की पढ़ाई आजकल कंपलसरी हो गई है, आपका एक सब्जेक्ट है जो हर एक कॉलेजेस में, स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली उसको इन्वॉल्व कर लिया गया है, कंटेंट बना लिया गया है, बिकॉज ऑफ द ट्रेंड एंड बिकॉज ऑफ द यंग माइंड. आजकल जो लोग हैं दे वांट टू बिकम देयर ओन बॉस, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, और इसीलिए देयर आर सम इंस्टीट्यूट व्हिच इज प्रोवाइडिंग द बेसिक बोल सकते हैं एजुकेशन ऑन एंटरप्रेन्योर्स. दे आर प्रोवाइडिंग वर्कशॉप, दे आर गिविंग कोर्सेज, and the institutes are EDII, IIE, Entrepreneurship Development Institute of India, that is located in Gujarat, and IIE, Indian Institute of Entrepreneurship, that is in Guwahati. So there are many institutes, NIESD, that is also providing the education on entrepreneurship, right? And they are also providing so many workshops and the certification courses through which you are able to get the direction. Your skill will be enhanced, your knowledge will be enhanced, that is useful for setting up the business. Okay? So your education is also one of the factor which influencing the entrepreneurship, right? Clear हो गई बात, समझ में आया सबको? How education is affecting entrepreneurship? Like you will get idea through education, you will get idea through experiments, you will get idea through training programs, that how you can set up the business. क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया? एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, now the next one is legal. Next one is legal. So what is the meaning of legal here? It is related with law, जिसको हम कानून कहते हैं. So government is also want to protect entrepreneurs. Government भी entrepreneurs को protect करना चाहता है, इसीलिए we all knows about the MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जिसके अंडर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको रिजर्व कर लिया गया है कि सिर्फ यही जो आपके ये लिस्ट में जो भी आपके जो भी टाइप के प्रोडक्शन होंगे, ये सिर्फ एमएसएमई यानी स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं इनको रन कर सकता है, इनको प्रोड्यूस कर सकता है, इन प्रोडक्ट को बना सकता है. लार्ज से को नहीं मिला ये अपॉर्चुनिटी. व्हाई? बिकॉज टू प्रोटेक्ट द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस पर्सन in the market, there is a lot of competition.
if the small enterprises will compete with the large enterprises, it is very much impossible for them to sustain for the long time. They cannot able to survive. So that is one of the reason that government also gives the legal protection to the small enterprises or the entrepreneurs. ठीक है, so reservation of the certain items are basically done by the government. ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से लीगल लॉज प्रोटेक्शन दे रहा है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो बिजनेस को अपना स्टैब्लिश कर पाए और बिजनेस को रन कर पाए और लार्ज कॉम्पिटिटर से compete करने के बाद उनका ऐसा वर्स सिचुएशन ना हो या फिर लार्ज कॉम्पिटिटर को compete करना ही ना पड़े. ठीक है, so the legal protection is also provided to the entrepreneurs basically in the initial stages, because जब initial stage में कभी भी कोई small enterprise setup होता है तो वो काफी weak होता है, कमजोर होता है ना. तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स होता है, मार्केट में compete करने के बेसिकली उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है. तो द लीगल प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द एंटरप्रेन्योर्स फॉर देयर बिजनेस. क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट भी? सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया सबको? लीगल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. This one is infrastructure. So what is the meaning of infrastructure? The basic amenities which is provided to the business person or the basic necessity for setting up the business, like electricity, water facility, land, building. ठीक है, so all these things comes under the infrastructure. So land and factories, sheds and provided by the government at concessional rate. There are so many SEZ. You all know about SEZ. क्या है ये? Special Economic Zone. तो इन शॉर्ट जो आपका लैंड है, फैक्ट्री है, कई बार गवर्नमेंट जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करता है. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप इन कंट्री, एंड इवन दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग सब्सिडी इफ दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस या दे आर सेटिंग देयर बिजनेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ठीक है, तो जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई बिजनेस सेटअप है तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कई बार उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लैंड, फैक्ट्री, पावर सप्लाई प्रॉपर हो, ठीक है, वाटर फैसिलिटी हो, रिसोर्सेस में आपका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, किसको? आपके एंटरप्रेन्योर्स को. तो इन सबको रेगुलरली प्रोवाइड करने के लिए भी कई बार गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है और सब्सिडी देती है, कंसेशन देती है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो प्रॉपरली बिजनेस को रन कर पाए. ठीक है, so the physical facilities, raw materials, and somehow these additional facilities are provided by the government to facilitate setting up the new enterprises. So infrastructure facilities are also one of the major factor which is influencing the entrepreneurship, and it is promoting the entrepreneurship. In short, they are motivating the entrepreneurs to set up business. ठीक है, if you will get additional benefit, so obviously we want to set up our business, right? So they are motivating. So who are motivating? Government is motivating the entrepreneurs. ठीक है, so they are providing the legal protection. Even they are also providing so many educational institutes to enhance the बोल सकते हैं knowledge of the people and motivate toward the बोल सकते हैं motivate towards setting up the new business, right? So educational factor, legal factor, and infrastructure factor. Next one is institutional factor. Institutional. आप लोगों ने लास्ट क्लास में लिख लिया था ना सारा पॉइंट, ये जितना भी है? Yes, ma'am. Okay. So before starting this point, before starting elaborating this point institutional, I just want to tell you that in today's class we are going to discuss about the success story of Phool. फूल, PHOOL, फ्लावर जिसको कहते हैं, उसका हिंदी फूल के बारे में fool.com जो आपकी कंपनी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है, और ये कंपनी किस तरीके से स्टार्ट हुई और कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज में कन्वर्ट हुई, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, राइट? सो लेट्स मूव टुवर्ड द इंस्टीट्यूशनल. So entrepreneurs need advice on the lines of manufacture, like where we have to manufacture, what we have to manufacture. So they need multiple advice. They are planning for that, right? They want to know so many things. That from where we are able to get the raw materials,
how we are able to get the fund or financial facilities from where we'll get, right? They want some technical knowledge even. They want advice on all these topics. Okay? So entrepreneurs also need to know about the opportunities, threats of the business, market situation, competitors, and for these things the बोल सकते हैं हम कि और क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं. तो इंस्टीट्यूशन हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड टू कीप द एंटरप्रेन्योर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दीज मैटर्स. So there are so many institutes which is established to provide the advice, and they are working as a consultancy to provide knowledge to the entrepreneurs. And what they will do, they will give you advice. They will tell you about the situation of the market. They give you the idea about the sources of raw materials. They will give you idea about the threat, opportunity, demand in the market. So institutions are also set up by the government. ठीक है. So educational institution as well as some consultancy institution. ठीक है. And even there are some organization government के द्वारा set किया हुआ बहुत सारा organization है who are basically doing these who are providing this facility. आगे बात समझ में clear हो गया? Yes, ma'am. Everyone? Okay. Next one is procedural. Next one is procedural. So procedure of setting up the business, which I discussed, that is entrepreneurship. So there are multiple steps which is required to fulfill by the government before setting a business. Like they have to visit the government office, they have to basically meet so many compliances which is made by the government. So we can say the government offices we have to go to the industries, departments, financial institutions, and even there are multiple hindrances. यानी कि बहुत सारे उसके अलावा रुकावटें भी हैं for growth of the new enterprises. So entrepreneurs जो है have to run the different job. बहुत सारे उनको job करना पड़ता है. जैसे they have to go to the government for different jobs, and उसके बाद they have to fulfill the formalities, compliances, several law, they have to follow rules, regulation, provision, they just need to know about it. So it would be potential that it would be better for the potential and existing entrepreneur if the number of procedural and legal restriction of the entrepreneurs is reduced and administrative mechanism is developed. ठीक है, तो आई बात समझ में. So we all know that before setting up the business, the entrepreneurs have to do multiple jobs. सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आती है कि कई बार यू आर सिंगल हैंडेड, बस आप एक सिंगल पर्सन होते हो और आपको अपने बिजनेस को सेटअप करना पड़ता है. ऐसे सिचुएशन में हर एक छोटा जो काम होगा, प्रोसीजर होगा, वो आपको अकेले फुलफिल करना पड़ेगा. आपको मल्टीपल टाइम ऑफिस जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको फंड अरेंज करना पड़ेगा, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आप मल्टीपल काम एक पर्सन को करना पड़ता है. तो कई बार एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं. दे डोंट वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर बिकॉज देयर आर सो मेनी हिंड्रेंसेस एंड सम टाइम इट इज कई बार वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. ठीक है, तो अगर ये प्रोसीजर जो है उसको अगर रिड्यूस कर दिया जाए, इसको या तो कम कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो somehow it is also become one of the factor, motivating factor for the entrepreneurs to start their business, right? So somehow the procedure need to be minimized. So procedures and steps, which is a very long term, and we have to give lot of effort, we have to give lot of time to fulfill these whole procedure. So this is also one of the demotivating factors. So I'm not talking about motivating factor. So if the procedure will be reduced somehow by the government, or the system will become more convenient for the entrepreneurs, so it might be possible that in long term they will basically try to set up their business in the more efficient way. ठीक है, तो बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर, एफर्ट की वजह से. तो कहीं ना कहीं अगर प्रोसीजर थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर द एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस. क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया एवरीवन? ओके. What is the meaning of communication? Because we already did marketing management, and I know that everyone knows what is the meaning of communication. Ma'am, interaction via people. oral or verbal basis. Communication is a process of sending the message, and there are two parties always involved in this. Minimum two parties are involved.
ठीक है, वन इज द सेंडर एंड सेकेंड वन इज द रिसीवर, राइट। तो यहाँ पर कम्युनिकेशनल का मतलब क्या है कि समहाउ कई बार कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स हैं दे आर टुवर्ड द एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब एकदम खत्म होने वाले हैं, बिल्कुल गायब होने वाले हैं, ठीक है। अगर हम कोई एंटरप्रेन्योर है जो नॉलेजेबल है, जिसने मार्केट पे रिसर्च किया है, जो पोटेंशियल को जानता है, लेकिन वो सब कुछ ही ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि व्हाट इज द competition, what is the market, what is the technology, each and everything he have idea about it, but still if he is not able to communicate with the potential people, if he is not able to communicate with the customers properly, it might be possible that because of this lack in the communication, ये communication का जो gap है कहीं ना कहीं, that is pushing those entrepreneurial venture toward extinct because they are in the loss, ठीक है। तो somehow आपको हर एक चीज की नॉलेज है, दैट इज नॉट सफिशिएंट ओनली, बट रेगुलर कम्युनिकेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड इट इज आल्सो नीड टू बी डन बाय द एंटरप्रेन्योरियल वेंचर टुवर्ड देयर स्टेक होल्डर्स। एंड हु आर द स्टेक होल्डर्स? Customers are stakeholders, government is a stakeholders, employees are stakeholders, so you need to do communication always, ठीक है। Through communication, it is not only that you are providing the information, but you will also get the information. What are the modifications required to be done in the business? What kind of changes, what kind of new product we can introduce to the market? So for various decisions, we need to be communicated with the potential people or target market, right? So communication is also one of the factors, or we can say that will be affect the business in both way. Either that can be negative if there is a communication gap, but if your communication is very strong, it will be it will be positively affect the business entrepreneur. Clear हो गई बात? Entrepreneurship clear हो गया सबको? So communication is always need to be done in the any venture, small enterprise, large enterprise, ठीक है। So communication is also one of the factor, ठीक है, and it is one of the factor which lead the entrepreneurs to get success. It lead to be successful. चलिए, next one is information and technology. अच्छा, what is the meaning of IT? Information and technology. अच्छा, what is technology? कोई बताएगा मुझे what is technology? How many of you are using smartphone, normal phone even? How many of you? Raise your hand. How many of you are using smartphone? I guess every second person, everyone is using smartphone. So don't you think that it is a contribution of the technology that we are using these kinds of electronic devices? True? अच्छा, मान लो ये तो समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज रिलेटेड विद द साइंस, ठीक है। एंड एक और चीज, नाउ वी आर बेसिकली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर वाया Zoom, so it is also the part of the technology. True? So just imagine, just giving you one example, कि मैंने मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर ओपन किया, जस्ट मानिए इस चीज को, ठीक है, and I am still basically based on the traditional way of teaching, like I am still based on totally books पे मैं based हूँ, और मैं बिल्कुल क्लासरूम जैसे क्लास आपकी चलती है ऑफलाइन फिजिकल, तो do you think that my coaching center will be successful? Do you? No, ma'am. I'm asking something like my Ma'am, coaching on this day. मेरा कोचिंग सेंटर मैंने मान लीजिए ओपन किया, ठीक है, और आई एम गिविंग एजुकेशन वाया यूजिंग द ट्रेडिशनल वे। जो ट्रेडिशनल वे है चल रहा है, क्लासरूम में बच्चों को आना है, क्लास चलेगी, बुक्स के लिए यहाँ पर आना है, कोई ई बुक की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक की सुविधा नहीं है। डू यू थिंक दैट माय कोचिंग सेंटर विल वर्क प्रॉपर्ली? No, ma'am. No, ma'am. Reason behind it is, first thing that we all know that pandemic is going on, ये pandemic चल रहा है, ठीक है, ये एक reason है, लेकिन still nowadays even the colleges, the small institutions, they are providing the online classes facilities in which the student don't need to come physically to the college or the institute, but they are able to interact with the teacher by using multiple, आपका क्या, multiple
प्लेटफॉर्म लाइक Zoom, Google Meet, Microsoft Team, ये सारी जो जितनी भी मैं नाम ले रही हूँ, जितने भी एप्स है, एप्लीकेशन है, इनके थ्रू आप आराम से क्लास अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं अपने उस ट्रेडिशनल टेक्निक पे बेस्ड रहूंगी तो कई बार ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक द टीचिंग, ये जो ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल, because somehow their demand is to get the online education, right? तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि कोई भी अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आता है मार्केट में, तो being an entrepreneur, it is your duty, it is your responsibility to try to adopt it as soon as possible. ठीक है? If you will based on the traditional tools, traditional ways, no, in later on it might be possible that consumer will be moved to the other alternatives, but they are not going to take service or goods from your basically business. आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? They are not going to take that facility whatever you are providing because the ways you are using that is outdated and that is traditional. क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? सबको क्लियर हो गया? Yes. अगर मान लो एक और एग्जांपल, अगर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने जो ओपन किया उसका कोई वेबसाइट भी नहीं है, so do you able to trust on my coaching center? No, ma'am. No, ma'am. Obviously no, because there is no knowledge information about my institute. True. So in short, you need to be updated with the technology all the time. So technology is also one of the factor which affecting the entrepreneurship. We'll take the example of Ola as well. Just imagine it started in 2010, 2010 में उसको start किया गया, but still within hardly 1 or 2 years में उन्होंने application ready कर लिया ताकि लोग उसको easily क्या कर पाए, access कर पाए। अगर उन्होंने वही मैनुअल तरीका आज भी चल रहा होता तो do you think that Ola इतना सक्सेसफुल होता? No, ma'am. No, ma'am. नहीं। तो टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट करना और टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, अडेप्ट करना, दैट इज रिक्वायर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। ठीक है? तो somehow the technology is also responsible behind, बोल सकते हैं for your success, that is also responsible. क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वन इज rapid changes. Somehow it is related with the modern technology only, that IT communication revolution nowadays in the industry, manufacturing sector, in the businesses, that is increasing day by day, and even there is so many resources in the industry which we can avail via using the IT, information and technology. So the rapid changes are going on all the time. ठीक है? Next one is the size of the business. So large size, what does it mean? That if you considerably increase the automation which is basically done without the manual resource, वो तो है manual process के अलावा जो automatically जो चीजें चलती हैं उसको automation कहते हैं। ठीक है? So there is a considerable increase in the automation and introduction of the computerized production and process control in industries. No doubt earlier they have a big log to write everything on that log. आजकल वो रजिस्टर की जरूरत पड़ती है नहीं. You have to keep all the data in computer. You can store those data, right? So we can say that the demand of the goods and the geographical reach जो है आपका geographical reach यानी कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं is bringing large size industries as well as service. ठीक है? तो size gets advantage of economies of scale and manufacturing market. So this is totally depend that what is the scale of production you have in your industry. Like if you are producing in the small quantity, anyhow you will never able to get or achieve the economies of scale. What is the meaning of economies of scale? जितना ज्यादा production करेंगे उतना ज्यादा low cost हो जाएगा per unit. पता होगा सबको economies of scale? तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, that matters. ठीक है? So if you are a small entrepreneur, always try to start with a small, that is true. लेकिन try to expand it as soon as possible so that you will provide the product to the consumer at the low cost. ठीक है? And we can say that the automations and computerized system is now introduced already. बहुत सारे मशीनरी आ चुकी हैं, कंप्यूटर आ चुके हैं, इंडस्ट्रीज में भी वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. So you don't need
so many human resources and a very vast area to operate all these things, but you will do it in a, बोल सकते हैं ना कि आप लार्ज प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत एक्सटेसिव लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन डू इट वाया यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी, जैसे मशीनरी को यूज कीजिए, कंप्यूटर्स में डेटा फीड कीजिए. So some people you require, but you can basically operate or produce the large amount of product. ठीक है, to achieve economies of scale. Now next one is R&D technology, research development technology. Every entrepreneurs need to basically invest their time, their money in research, because research is something which will help you to take decision for the future process or operation. आ रही बात समझ में? फ्यूचर में करना है वो मार्केट रिसर्च के थ्रू हम डेटा से एनालाइज कर सकते हैं, सेल्स फॉरकास्ट कर सकते हैं, डिमांड समझ सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर समझ सकते हैं, पोटेंशियल मार्केट को समझ सकते हैं. तो हर एक एंटरप्रेन्योर को रिसर्च पे काम करना चाहिए. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज somehow also one of the factor for this. स्टेक होल्डर्स जिनका आपके बिजनेस से इंटरेस्ट है, जैसे आपके शेयर होल्ड, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, कंज्यूमर, सप्लायर, ऑल दीज आर द स्टेक होल्डर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग स्टेट्स में. Who is saying this? Mahi ma'am. Mahi. Yes, somehow your answer is correct that it is a way of basically ठीक है, दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट सेल करना, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली इट इज इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विथ वर्ल्ड इकोनॉमी. यानी अपने देश से सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, मिलाना. दिस इज ग्लोबलाइजेशन. Right, here we are basically supplying the goods and services, here we are supplying the human resources, here we are doing FDI, foreign direct investment. So all these are the part of the globalization. So here nowadays we don't need to think that we are only dealing in the domestic market. हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि सिर्फ हम डोमेस्टिक मार्केट में डील कर, but we are able to basically get the foreign consumers as well. Because अब जो मार्केट है that is a open market, there is no restrictions, tariff barriers, ये सब बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिए गए हैं. ठीक है, 1991 में जब LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद बहुत सारे बैरियर्स खत्म कर दिए गए हैं. तो अब यहाँ पर और कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया है, क्योंकि अब आपके कॉम्पिटिटर्स सिर्फ डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स, डोमेस्टिक मार्केट कॉम्पिटिटर्स नहीं है यहाँ पर आपके आसपास के, और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज नहीं है, आपके इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं आपके कॉम्पिटिटर. इवन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर आल्सो योर कॉम्पिटिटर. So in short, we can say that globalization basically created an open environment where we can easily able to sell the product to the foreign consumers, domestic consumers. We have to compete with the domestic suppliers, domestic manufacturers, as well as foreign manufacturers, foreign companies. So this is where we just need to be very much strategic before starting the business. यानी कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अब आपको सिर्फ अपने एनवायरनमेंट, अपनी कंट्री को देखकर नहीं, आपको पूरे वर्ल्ड को देखते हुए, मतलब कि क्या चीज डिमांड हो सकता है, नॉट इन आवर कंट्री बट इन एवरी कंट्री. So we just need to think about before starting the business. So globalization is also affecting the business somehow in the positive way, because we are able to get machinery from so many other from the other countries. अब दूसरे कंट्री से मरीज भी मंगा सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बेनिफिट भी ले सकते हैं, लेकिन वही कंपटीशन भी है. ठीक है, so it is affecting in the both way, positive as well as negative, because हमें वास्ट मार्केट मिल रहा है डील करने के लिए, फॉरेन कंज्यूमर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपको बहुत सारी कंपनीज भी मिल रही है, बड़ी कंपनीज, रिनाउंड कंपनीज, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, जिनके साथ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा. So these are the factors, and these factors affecting the business in the positive way as well as in negative way. ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे एजुकेशनल फैक्टर दैट ऑलवेज अफेक्ट द एंटरप्रेन्योरशिप इन द पॉजिटिव वे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हो गया आपका, साइज ऑफ द बिजनेस हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, रैपिड चेंजेस हो गया, कम्युनिकेशनल हो गया, प्रोसीजरल हो गया, somehow are basically motivating the entrepreneurs as well as they are demotivating the entrepreneurs. क्लियर हो गई बात?
So these factors, जितने भी practice करवाया, सबको clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, Okay. So I just want to tell you about one more topic and it is very, मतलब ये तो आप आराम से ऐसे ही समझ सकते हो और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे आंसर दे देंगे मुझे इसका. लेकिन what is the pros and cons to being an entrepreneur? Let's start. Pros and cons मतलब क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है एक एंटरप्रेन्योर को, उसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. तो pros क्या होगा, क्या क्या हो सकता है बेनिफिट, कौन बताएगा मुझे? बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या क्या बेनिफिट होगा? Tell me, what can be the benefit? Raise your hand. Ma'am, self ownership होगा. Very good. Self ownership. मैम डिसीजन मेकिंग वो होगा उसमें. Very good. Profit maximization. Profit maximization. Very good. Financial Wealth creation. crisis. Financial decision we can take solely. Yes, ma'am. Anyone Wealth else? creation. Wealth creation. Very good. Anyone else? Okay. So every point, whatever you all said, that is correct. Very good. Let's start with the pros of entrepreneurs. हाँ बोलो. मैम टाइम टेबल भी खुद का रहेगा ना काम करने का उसमें. Very good. So we are our own boss in short. So let's start with the pros. So you are your own boss and have control over your future. So आप अपने खुद के मालिक होंगे. आपको अपना बिजनेस कैसे रन करना है, क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, किस टाइम पर आना है, कब जाना है, ये सारी चीजें जो आपकी पॉलिसीज, ये सब कुछ आप खुद बनाओगे. ठीक है. बट इफ यू आर वर्किंग इन अदर एंटरप्राइज, अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वी हैव टू फॉलो दोज नॉर्म्स एंड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस which is made by the company. But you are when you are starting your business, you will be your own boss. आप अपने मालिक, खुद के मालिक आप खुद होंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज चॉइस. आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो जाएंगे. आपके पास जैसे अगर मैं किसी ऑफिस की बात एग्जांपल करूं, तो जो टाइम सेट होगा, आपको उसी टाइम पे ऑफिस में रिपोर्ट करना है, उसी टाइम पे आपको ऑफिस से क्विट मतलब एग्जिट करना है. लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस आ जाएंगे, जैसे कि यू सेट योर आवर्स. आपको कितने बजे ऑफिस आना है, आपको कितने बजे जाना है, यू कैन सेट योर आवर्स. अपने टाइम को आप खुद सेट करोगे. यू कैन चूज योर एम्प्लॉइज. आपको आपके एम्प्लॉइज होंगे, यू विल चूज दैट. ठीक है. Even you have multiple opportunities that decision is all up to you. आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, वो सब आपकी मर्जी खुद की होगी. So you will get multiple option, you will get multiple choices in short, right? Next one is that you have opportunity to utilize your full skill, potential, knowledge and creativity. Because if we are doing work in any other organization, मैं comparison भी करते चलूं कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो you have to utilize your potential till what is demanded by the company. यानी जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उनके वो आपको जो काम अलॉट करेंगे, आपको वो जो काम देंगे, जिस डिपार्टमेंट में देंगे, जिस एरिया में देंगे, उसी एरिया पे आपको काम करना है. सही बात है या नहीं? ट्रू. बट इन द केस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर आप हर एक डिसीजन खुद लोगे. साथ साथ में आपके पास पूरा अपॉर्चुनिटी होगा कि आप अपने स्किल को प्रॉपरली यूटिलाइज करो. मतलब अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को पूरा चेक कर लो, अपनी क्रिएटिविटी को हर एक एरिया में यूटिलाइज कर लो. यहाँ तक कि फाइनेंसिंग का काम कई बार एंटरप्रेन्योर खुद करता है, मार्केटिंग का काम खुद करता है, साथ साथ में एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट का काम, यानी एचआर का भी काम खुद करता है. कौन? आपका एंटरप्रेन्योर. So they have option to basically explore every areas of his business as well as they can utilize their creativity, skill and knowledge. Clear हो गई बात? समझ में आ गया? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next one is there is a financial reward का यहाँ पर benefit loss भी है. क्योंकि अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, तो सारे प्रॉफिट एंजॉय कौन करेगा? आप खुद एंजॉय करोगे. लेकिन वही अगर लॉस हो गया, तो लॉस को कौन बेसिकली हैंडल करेगा? एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी है, जैसे आपको कई बार प्रॉफिट मिलेगा, आपको इनकम होगा, आपको टैक्स
के ऊपर भी कई बार आपको छूट मिलेगा, कंसेशन मिलेगा, तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स भी यहाँ पर अकेले आप एंजॉय करोगे इसको। लेकिन अगर बाय चांस लॉस हो गया तो रिस्क इज ऑल्सो एसोसिएटेड, नो, लेकिन ये आपके डिसएडवांटेज में आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिलेगा, मतलब आपको इनकम होगा, आपके पास टैक्स एडवांटेजेस होगा, प्रॉफिट होगा, सब्सिडी मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद आपके पास जॉब सिक्योरिटी होगा। जॉब सिक्योरिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? अच्छा, इससे पहले बताओ एम्प्लॉइज टर्नओवर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉइज टर्नओवर? डिससेटिस्फैक्शन के कारण कंपनी छोड़ देना। वेरी गुड। सो इट इज एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब होता है कि आपके ऑफिस से कितने लोग जॉब छोड़ के क्विट करके जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज एम्प्लॉइज टर्नओवर। अगर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर हाई है तो इट मींस योर एनवायरनमेंट इज नॉट गुड और सुटेबल फॉर द एम्प्लॉइज, राइट। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा है तो एम्प्लॉय टर्नओवर आपका मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो दे हैव ऑप्शन टू दे कैन रिमूव अस एनी टाइम, कभी भी वो हमें बाहर कर सकते हैं, कभी भी हमारी जॉब जा सकती है। लेकिन यही सेम प्रॉब्लम आपके साथ एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं है, क्योंकि बिजनेस आपका खुद का है, तो देयर इज जॉब सिक्योरिटी। आपको जॉब से कौन निकालेगा? आप तो खुद अपने बॉस हो, आपका तो वो खुद बिजनेस है, राइट। तो देयर इज जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। वैरायटी इन योर वर्क रूटीन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यू हैव सो मेनी वर्क टू डू इन द वेरियस डिपार्टमेंट, इन द वेरियस एरियाज, तो वेराइटीज होगा आपके पास। तो आपका कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज आप बहुत सारे एरियाज में बनोगे, ठीक है। यू विल गेट एक्सपीरियंस बाय वर्किंग इन वेरियस एरियाज, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, खुद में आपको संतोष होगा, क्योंकि आप खुद अपना जॉब खुद से आपने क्रिएट किया है, दूसरों को आप जॉब दे रहे हो। पर्सनल अचीवमेंट को आपको फील होगा, रिकॉग्निशन होगा, आपका मार्केट में, सोसाइटी में आपका नाम होगा। तो आपका कहीं ना कहीं सोशल सेटिस्फैक्शन, एक बोलते हैं सामाजिक तौर पे भी आपका लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपको इंस्पिरेशन समझेंगे, आपसे मोटिवेशन लेंगे। तो कहीं ना कहीं दैट इज मतलब आपको यहाँ पर पर्सनल अचीवमेंट और सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी अचीव होगा। सो दीज आर द प्रॉस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स के ये सारे मतलब प्रॉस हैं कि मतलब क्या फायदा होगा जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो क्लियर हो गया सबको सारे पॉइंट? एवरीवन? यस मैम। तो सबसे पहले इसमें डिसएडवांटेज बोला जाए तो रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पास श्योरिटी नहीं है कि बिजनेस आपका रन करेगा नहीं करेगा, बहुत ज्यादा रिस्क है। और मैं एक बात बता भी दूं, एंटरप्रेन्योर्स का सक्सेस रेट जो था ना इंडिया में, दैट इज 6%। अभी तो वो और भी डिक्लाइन हो गया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, एंड दैट कम्स, आई थिंक दैट कम्स टू 3% अराउंड, ठीक है। तो हमें सक्सेस स्टोरी तो पता है कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनकी स्टोरी तो पता है, बट देयर आर सो मेनी फेलियर्स एज वेल, ठीक है। सो देयर आर द चांस ऑफ बिजनेस फेलियर, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा पैसा डूब सकता है, आपका एफर्ट, आपका टाइम, आपके करियर पे वर्स्ट इफेक्ट पड़ सकता है इसका, ठीक है, अगर आपका बिजनेस डिक्लाइन हो गया, डूब गया। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप सोच रहे हो कि बीइंग एंटरप्रेन्योर हमारा अपना रूटीन है, हमारे पास अपना टाइम है, तो 2 घंटे आए और 2 घंटे में काम करके चले जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल। आइदर यू आर कमिंग एट 11 or 12, you have multiple work to do, and because that is your own office, you have to sit till, sometimes the entrepreneurs are sitting till 11 PM 11 PM तक, 11 बजे तक बैठे होते हैं। So they have multiple work to do, they have to give their time, effort, dedication, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनकम इज नॉट सिक्योर एंड रेगुलर। जरूरी नहीं है कि इस महीने मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे इस मंथ अच्छा खासा इनकम हो ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 2, 3, 4 महीने तक कोई भी इनकम नहीं होता है। तो कोई रेगुलर इनकम, कोई फिक्स्ड इनकम, जैसे सैलरी होता है हमारा ऑफिस में, वैसा कोई भी जरूरी नहीं कि आपको यही सेम चीज यहाँ पर भी मिले। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए एक मंथ में इनकम हो गया, और कई बार ये भी हो सकता है कि यू डिडंट अर्न अ सिंगल पेनी, 1 रुपया भी आपने अर्न नहीं किया। So there is a possibility of both. So there is no fixed salary, कोई secured fixed salary आपका नहीं है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपने फाइनेंशियल फंड वगैरह लगाया, कई बार आप अपने पूरे सेविंग्स को लगा देते हो। जो भी आपने अपने जॉब के दौरान जो भी इनकम अर्न किया, मान लीजिए अगर आपने 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अपने पास स्टोर करके रखा, स्टॉक में एफडी करके रखा, आपने उस पूरे पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और आपका बिजनेस प्रॉपर्ली रन नहीं कर रहा है, तो दैट विल ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट स्ट्रेस,
ठीक है, आपको टेंशन दे सकता है ये, ठीक है। तो स्ट्रेस इज देयर, प्रेशर सक्सीड बिकॉज कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई and the बोल सकते success rate is very low, so somehow it is making the pressure, they are pressurizing, these factors are pressurizing the entrepreneur that कि वो सक्सेस करेंगे कि नहीं। तो मतलब सक्सेसफुल होने के लिए दे आर बेसिकली विथ स्ट्रेस और उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क है, somehow you have to do so many sacrifices because to achieve something, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये तो मम्मी पापा सब बोलते ही हम लोगों को याद होगा, ये लाइन हमेशा यूज किया जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दिस लाइन इज सुटेबल फॉर दिस पॉइंट, दैट इज सैक्रिफाइस। लाइक सो मेनी टाइम यू कैन नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली, आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाइएगा, आपके पास फाइनेंशियल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी पैसों को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप अपने जो बोल सकते हैं गुड टाइम जो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बिताते हो वो भी आपको कई बार सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और पूरा टाइम आपको किसको देना पड़ेगा, अपने बिजनेस को देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और नींद भी, स्लिप, नींद भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपने बिजनेस शुरू किया और अगर आपने अपने अंडर कुछ एम्प्लॉइज को भी हायर कर लिया है तो नाउ देयर करियर जो है दैट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे विल ग्रो विथ योर बिजनेस, उनका ग्रोथ आपके बिजनेस के साथ होगा। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मल्टीपल रोल आपको प्ले करना पड़ेगा खुद से। फाइनेंशियल सेक्टर में आपको खुद, फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को खुद हैंडल करना पड़ेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वी कैन से दैट दे हैव मल्टीपल रोल्स टू डू एंड दे हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी में भी लैक हुआ, किसी में भी कमी हुआ तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द होल इंटरप्राइजेस और बिजनेस, ठीक है। Regulations and paperwork. So before starting the business, you have to basically follow fulfill all the compliances which is made by the government as a very long-term procedure, which we already discussed in the factor procedural में किया था ना। तो यहाँ पर इसके cons ये सारे हो गए। तो pros and cons clear हो गया सबको? Benefit और loss, benefit और losses क्या क्या है सबको clear हो गया? Yes, ma'am. चलिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड आवर स्टोरी, टुडेज स्टोरी, fool.com। अच्छा, यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन? सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके, तो यहाँ से स्टोरी है। सो फूल जो कंपनी है दे आर मेकिंग इसेंस स्टिक। क्या बनाते हैं ये? अगरबत्ती। क्या बनाते हैं? अगरबत्ती, धूप बत्ती दे आर मेकिंग। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, कैमरा टर्न ऑन कीजिए। हाँ, तो व्हाट दे आर मेकिंग बेसिकली धूप बत्ती एंड अगरबत्ती। बट ऐसा क्या स्पेशल है? सब लोग धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट दे आर मेकिंग दीज अगरबत्ती एंड फूल बत्ती, ये धूप बत्ती फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर से ये बनाते हैं इन सब चीजों को, धूप बत्ती अगरबत्ती, जिसको इसेंस स्टिक्स कहते हैं। दे आर मेकिंग दैट। अब इनकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ, एंड जो आपके बोल सकते हैं कि हाउ दिस आइडिया केम इन द माइंड ऑफ अंकित, ठीक है, अंकित अग्रवाल। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टोरी। Just wait for a sec. ठीक है। So how this story is generated by Ankit Agarwal? How this idea is generated by Ankit Agarwal? Let's discuss about it. एक दिन मकर संक्रांति को, 14 जनवरी जो मकर संक्रांति हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में सेलिब्रेट किया, उसी फेस्टिवल की बात है। ये मकर संक्रांति का दिन था जो एंशिएंट इंडियन फेस्टिवल है, विंटर का टाइम था, और लोग उस दिन रिवर गंगा में, और रिवर गंगा जो है वो पवित्र नदियों में से एक है जिसमें लोग उस दिन मकर संक्रांति वाले दिन स्नान करते हैं, ठीक है। कोल्ड विंटर मॉर्निंग था, 2015 की ये बात है। एक फ्रेंड, अंकित अग्रवाल का एक फ्रेंड है जो कानपुर में उनसे मिलने आया, ठीक है, उनके घर पे आया कानपुर में मिलने के लिए, ठीक है। अब वो फ्रेंड जो थे अंकित अग्रवाल के, ही इज मच इंटरेस्टेड
टू विजिट रिवर गंगा घाट, घाट ऑफ द रिवर गंगा, मतलब वो घाट पर जाना चाहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये लोग घाट पे चले गए, अंकित अग्रवाल और उनके फ्रेंड का नाम था जाकोब। ठीक है, तो जाकोब जो था ये ही वाज हिज फॉरेनर, मतलब एक फॉरेनर था वो, ही इज नॉट इंडियन बेस्ड पर्सन, इंडियन सिटीजन नहीं था, फॉरेनर था। तो वो लोग चले गए घाट पे। ठीक है, अब घाट पे जैसे गए वहां पर उन्होंने देखा कि लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, लोग स्नान कर रहे हैं। सम पीपल आर बेसिकली टेकिंग वाटर फ्रॉम दैट री, गंगा मतलब गंगा नदी से कुछ लोग पानी बॉटल में भर रहे हैं, कुछ लोग पानी को पी रहे हैं। बट वॉट दे सॉ, उन्होंने क्या देखा, और कि वहां का जो वो जो गंगा नदी है, उन्होंने कुछ देखा कि दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। मतलब इतना ज्यादा गंदा था गंगा नदी कि उनको देखकर ये काफी हैरानी हो रही थी कि लोग इस तरीके से वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट करते हैं। और सिचुएशन था कि उन्होंने देखा कि पानी में ज्यादातर कुछ यहाँ पर फ्लावर्स थे। ठीक है, जिसको पानी में वाटर में डिस्चार्ज कर दिया था। तो अर्लियर ही वाज थिंकिंग, मतलब आपके जो अंकित अग्रवाल थे, ही नोज कि समहाउ फैक्ट्रीज जो है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो टॉक्सिक आइटम्स को यहाँ पर बिना चेक किए इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन ही सॉ दैट दिस डंप किया हुआ था, जो भी वहां पर आपका वो सब एक गार्बेज था, उसमें से कुछ फ्लावर्स भी थे। ठीक है, पानी में देखिए रहा होगा, आप लोग भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कितने सारे फ्लावर्स हैं। Yes, अब ये फ्लावर्स आया कहाँ से? तो वहां आसपास बहुत सारी मंदिर, टेम्पल्स हैं, और टेम्पल में हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं, वर्शिप करते हैं भगवान का, ठीक है, तो हम लोग पूजा में हम लोग फ्लावर्स को भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। अब ये आज तो हमने भगवान पे चढ़ाया, लेकिन जब मंदिर की साफ सफाई होती है तो इन सारे फ्लावर्स को बाहर निकाल करके इनको वाटर में डंप कर दिया जाता है। मतलब ये उन्होंने ये सारी चीजों को नोटिस किया। ठीक है, अब जैसे उन्होंने फ्लावर्स को देखा, दे अंडरस्टैंड। अब अच्छा, एग्रीकल्चर के लिए आजकल का जो सिचुएशन है, यहाँ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और बहुत सारे केमिकल्स को यूज किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं ऑर्गेनिक फूड खरीदते हो, ऑर्गेनिक ग्रेन वगैरह परचेज करते हो? ऑर्गेनिक जिसमें लिखा होता है, बहुत सारे लोग कोई हैं जो परचेज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड वगैरह? अच्छा, दिव्या एंड वेद। So do you tell me, can you tell me that why you are purchasing organic food material? मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक ग्रेन्स क्यों खरीदते हो वेद और दिव्या, बताओ मुझे। मैम Can you tell me behind the reason behind purchasing that product? अगर मैम किसी चीज का ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव मिल रहा है तो फिर सही रहता है वो खरीदना, क्योंकि आजकल किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ तो हार्मफुल केमिकल है ही, तो मतलब जितना पॉसिबल हो उतना तो ले ही सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं ना, उनको उगाने के लिए हम ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करते हैं, समझ रहे हो? मतलब जो खाद होता है दैट इज नेचुरल मेड, तो उसमें कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होता है। और उसको उगाने में भी जो टाइम है वो कंपैरेटिवली, मतलब जो कन्वेंशनल वे है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसी वजह से आपका ऑर्गेनिक जो फूड होता है, फूड मटेरियल होता है, वो एक्सपेंसिव में मिलता है। सही बात है कि नहीं वेद? एक्सपेंसिव रहता है कि नहीं कंपैरेटिवली टू नॉर्मल में? ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही था कि इवन फ्लावर्स जो है उनमें भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल है, ना कि ह्यूमन के लिए बल्कि बाकी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। साथ साथ में जो इस तरीके से डंप हो रहे थे, मतलब जो भी डंप हो रहा था वेस्ट, वो कहीं ना कहीं मेरीन लाइफ को भी बहुत ज्यादा वर्सली इफेक्ट कर रहा था। तो बिकॉज वॉचिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, अंकित अग्रवाल के दिमाग में एक आइडिया जनरेट हुआ, एंड ही इज एन IIT ग्रेजुएट, IIT कानपुर से ही ग्रेजुएटेड, एंड उस समय उनकी पढ़ाई चली रही थी, मतलब कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, एंड ही वाज डूइंग द जॉब, मतलब वो जॉब कर रहे थे। ठीक है, तो जो अंकित अग्रवाल हैं उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जस्ट डू समथिंग बेटर, जिससे उनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे थे। फर्स्ट वन इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट यानी वेस्ट से हम कैसे कुछ बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज विमेन एम्पावरमेंट, यानी विमेन को किस तरीके से जॉब प्रोवाइड किया जाए, एंड इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए बेसिकली एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फ्लावर्स को जब देखा तो दे बेसिकली गिव मतलब अराउंड 2 years फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट विथ फ्लावर, and after that he will get the idea of making agarbatti and dhoop batti via using flowers, these waste flowers. और ऐसा आप समझिए कि इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि देखो फ्लावर को ना कोई देना नहीं चाहता था, क्योंकि स्टार्ट में जब वो मॉस्क्यूज में टेम्पल्स में गए तो बहुत लोगों ने उनको ये फ्लावर्स देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पूजा भगवान के लिए धर्म, एक आप बोल सकते हैं ना कि आपकी एक श्रद्धा से रिलेटेड चीज है इसमें, ठीक है, आपका डेडिकेशन है, आपका भगवान के लिए डिवोशन है। तो लोग ट्रस्ट जो थे, वहां के जो लोग थे, मंदिर के मस्जिद के जो लोग थे, उन्होंने फ्लावर देने से स्टार्टिंग में उनको मना कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने एक टैगलाइन यूज किया अंकित अग्रवाल ने, तुझको तुझी को अर्पण, ठीक है, यानी कि दिस टैगलाइन, ये जो टैगलाइन था इसने वर्क किया कि जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट दैट इज बेसिकली फॉर वर्शिपिंग, यानी भगवान को ही वर्शिप करने के लिए हम इस सेंस स्टिक का यूज करते हैं। तो उन्होंने जब ये चीजें उन लोगों को बताया कि हम जो इससे प्रोडक्ट बनाएंगे दैट विल यूटिलाइज फॉर वर्शिपिंग ओनली, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट इवन दे आर मोटिवेटेड एंड आफ्टर दैट दे गॉट flowers from the temple directly. They stopped dumping the flowers in the water body and they started giving those flowers to the अंकित अग्रवाल जो थे, उन्होंने बिजनेस में मतलब उनको मिलना ये शुरू हो गया, ठीक है। सो ट्रक के ट्रक मतलब अर्लियर दे स्टार्टेड, जब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने तो सिर्फ 2 kg ऑफ फ्लावर से दे स्टार्टेड इन बेसिकली डूइंग द एक्सपेरिमेंट एंड लेटर ऑन टन के टन उनके पास फ्लावर्स आना शुरू हो गए। And for this, they also give employment to so many women, and now there are around 80 women who are working under this company and who is involved for making this statistics. Clear हो गया सबको? समझ में आया यहाँ तक स्टोरी? एंड ये जो जर्नी था, मतलब एक प्रॉपरली इसके ऊपर काम करना, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम दिया इस चीज को। तो पूरा फ्लावर साइकिलिंग जो था वो प्रोसेस रन किया। सबसे पहले कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस रन किया, इसको मैं इलाबोरेट करती हूँ। पहला कि जो टेम्पल वेस्ट, जो भी चीज फ्लावर वगैरह, उसको कलेक्ट किया गया टेम्पल से और उसको फिर लाया गया एक पर्टिकुलर ऑफिस, एक एरिया में जहां पर उन्होंने इस बिजनेस को स्टैब्लिश किया, वहां पर इसको लाया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है ना कंपनी का, दैट इज इन कानपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सेकेंड, फिर फ्लावर को एक जगह पे एग्रीगेट किया गया, किस चीज में, प्लास्टिक कंटेनर में, बड़े बड़े प्लास्टिक कंटेनर्स में फ्लावर को डाला गया। उसके बाद ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम के थ्रू इन फ्लावर्स को, केमिकल के थ्रू इनको पूरा बोल सकते हैं क्या किया गया, श्रिंक किया गया, ठीक है, मतलब इनको श्रिंक किया गया, इनको गलाया गया इन शॉर्ट। उसके बाद फ्लावर्स को मतलब पहले इनको बोल सकते हैं पहले धोया गया, वॉश किया गया, एंड आफ्टर दैट इसको पूरा श्रिंक किया गया, ठीक है। उसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्टिंग किया गया, मतलब इनको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया गया, एंड उसके बाद इनको बाद में फिर कन्वर्ट किया गया। वर्मी कंपोस्ट वगैरह में बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ये टेक्निकल चीजें हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह, बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट, इनको कंपोस्ट किया गया। उसके बाद जाकर के फाइनली इट वाज कन्वर्टेड इनटू द स्टिक्स, ठीक है। तो द होल प्रोसेस टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, इवन इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट डे पहले उन्होंने देखा कि ये आइडिया काम करेगा कि नहीं, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड making the incense stick and dhoop batti, and even you can purchase it through Amazon. So they started selling their products via utilizing the e-commerce platform, that Amazon. Even you all know कि Alia Bhatt, she also invested in this company. She also invested in this company, and इन्होंने जो अपनी पैकेजिंग को यूज किया, इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, फर्स्ट दैट दे सेलेक्टेड e-commerce platform they use. Second thing, they use a very attractive packaging, बहुत ही attractive और beautifully package system इन्होंने use किया, बहुत beautifully इन सारे essence stick को पैक किया, बहुत ही colorful packaging system, ठीक है। तो I guess यहाँ तक सबको clear हो गया होगा point, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. So after giving ma'am. job to so many women, even बहुत सारे उनके जो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, they started going to the school. So somehow they basically contributed to society. They basically reduced the pollution of water bodies, and they also work on the sustainable development. And बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं it also provided employment to the people. So these are the concept behind this कंपनी. अच्छा, इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में अगर आप लोगों को बताऊं तो बहुत शॉर्टकट में इनको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ. पूरी कहानी तो मैंने बताई आपको, अब इसको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ. अंकित अग्रवाल, ही इज बेसिकली फ्रॉम कानपुर एंड ही इज लिविंग इन कानपुर, उत्तर प्रदेश. कंपनी जो है Fool.co कंपनी जो है वो उन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया है. वो उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में. ठीक है. और ये आइडिया जो है ये कैसे आया? बाय वॉचिंग द, बोल सकते हैं वो जो गंगा का जो डर्टी वाटर को जब उन्होंने देखा और जो डंपिंग सिस्टम को देखा, उससे इनका ये आइडिया आया. अब देन मतलब उन्होंने देखा कि किस तरीके से लोग वाटर को मतलब वहां पर पॉल्यूट कर रहे हैं, इससे उनका आइडिया आया. एंड ही कन्वर्टेड द टेम्पल फ्लावर्स इनटू द धूप बत्ती एंड अगरबत्ती. एंड ही इवन शेयर्ड दिस आइडिया विथ हिज फ्रेंड. अपूर्व के साथ उनके एक फ्रेंड भी था जिनके साथ उन्होंने ये आइडिया को शेयर किया. तो उसके बाद दे बोथ स्टार्टेड इट टुगेदर, मतलब दोनों ने फिर साथ में मिलके इस बिजनेस को आगे रन करने का डिसाइड किया. और ऑन द डेली बेसिस अगर बोला जाए तो लगभग ऑलमोस्ट 3.5 टन, मतलब समझ रहे हो, टन में फ्लावर्स जो है वो कानपुर में अभी भी कलेक्ट होता है. ठीक है. और they also try to do something more innovative and they try to convert the flowers into the leather as well. But leather के बारे में अभी कोई confirmation नहीं आया है कि that experiment succeeded or not. But धूप बत्ती और अगरबत्ती तो सेल हो रहा है इस कंपनी के थ्रू. ठीक है. और 2 kg फ्लावर और 72,000 रुपीज के साथ ये बिजनेस को शुरू किया गया और अभी ये मिलियन में बिजनेस है. ठीक है. और अंकित अग्रवाल जो है वो बाद में IIT और IIM भी उन्होंने विजिट किया, जहां से उनको 20 लाख रुपीज एज अ फंड मिला. आलिया भट्ट ने भी इसमें इन्वेस्ट किया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया. और इनका ये जो टैगलाइन था, 13 तुझको अर्पण, ये इसने इट स्टार्टेड वर्किंग फॉर अंकित अग्रवाल. एंड नेक्स्ट वन इज, मतलब इनका एक रिचुअल एक्सप्लेनेशन था क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे, तो ही बेसिकली गिव द रिचुअल एक्सप्लेनेशन that this agarbatti is going to use for the worship and the whole flower cycling process. and funding की बात करें तो अभी फिलहाल इनके पास बहुत सारे फंड, मतलब बहुत सारे एसोसिएशन है, जैसे DRK फाउंडेशन, there is DRK फाउंडेशन which is related with the IIT Kanpur. They have some celebrities who started investing in that. Even now कोरोना टाइम जब आया है तो लगभग इनके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम. दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड दे हैड नॉट एनी इनकम बट एक्सपेंसेस गोइंग ऑन. मतलब 2-2.5 महीने से उनका एक्सपेंस तो चल रहा है बिकॉज दे हैव टू गिव सैलरी टू द एम्प्लॉइज. तो इसी तरीके से मतलब हम कह सकते हैं. बट नाउ दे गॉट मल्टीपल फंड. इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर के भी बहुत सारे जो हैं वो उनको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे IAN फंड, सैन फ्रांसिस्को ड्रैपर. There are multiple foundations who are providing fund to them. और अभी ये मिलियन में कंपनी है बट अभी थोड़ी सी लॉस में है बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम. ठीक है. बट दिस इनोवेशन वर्क्स फॉर पीपल एंड दिस इनोवेशन इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन. हाउ वाज इट? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसी स्टोरी थी ये? How was अच्छी it? है. अच्छी थी मैम. You can see that how he is basically explaining about the conversion of the flowers into essence stick, and there are so many women who are basically getting knowledge and information about it. ठीक है. They have a full team. Earlier they started with 7 or 8 women, but now they have more than 80 women who is working under this company. And even there is the CEO of Unilever, he also said something about this, that I am impressed by your school enterprises in India
which is perfect example of circular economy. सर्कुलर इकोनॉमी कैसे, आप जो फ्लावर्स खरीदते हैं, पैसा देते हैं, फिर उस फ्लावर्स को अगेन सेंसस्टिक में कन्वर्जन, तो मतलब कह सकते हैं ना कि वेस्ट नहीं होने की जगह पे यूटिलाइजेशन हो रहा है. So he is saying that it is a perfect example of circular economy. Keep setting the standards for others to follow, and it is one of the inspirational story and example for the others. Okay, so anyone have any doubt in this story? किसी को कुछ पूछना है, कोई question? समझ नहीं आया हो? क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How was it? Tell me. Good, ma'am. Interesting, ma'am. And don't you think this is one of the example for us as well? Like they are basically utilizing the waste. In short, कह सकते हैं ना, जो waste जा रहा था, जो बर्बाद हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं they started utilizing, है ना? True? Yes. Yes, yes, ma'am. Okay. चलिए. So with Ma'am, the एक problem, question. हाँ बोलो. मैम इफ मेरे पास कोई आइडिया हो बिजनेस को लेकर, There is SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. You can get funds through that. You have option of NABARD, National Agricultural Rural Development Bank. You have option to get the fund via utilizing the MSME के through भी you are able to get the fund. There are multiple projects for that. Even a SMILE एक project है, ठीक है? Small enterprises के लिए एक SMILE project है. That is started for funding the entrepreneurs without taking the collateral, means very less security is required to get that loan, and you will get a long time to refund that fund, means around 10 years, 12 years, 30 years तक आप loan चुका सकते हो. So there are so many institutes and so many banks. Clear हो गया? लेकिन you will get the fund only when they are satisfied with your proposal, they are satisfied with your business idea. If they are not satisfied with that, so somehow it might be possible that they are not going to provide you fund, and you have to follow all the compliances and all. After that you will get the funds from that. Clear हो गया? समझ में आया सबको? किसने पूछा था ये क्वेश्चन बच्चे? मैम युवराज. युवराज, ठीक है. युवराज क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम. ओके. और अगर आप Yes, ma'am. as well, we can see the example of Flipkart as well, है ना? Flipkart का एग्जाम्पल तो हमें यही बताता है कि कैसे Amazon में काम करते करते they started thinking about starting their own e-commerce platform. Okay,